Hello everyone. Today we are going to learn tenses. What is tenses? Tense होता क्या है? Which tells you the time, right? Time बताता है which is present, past and future. Each tense carries four subtenses. There are three main tenses and each tense carries four subtenses. The first subtense is for present, simple, present continuous, present perfect, continuous. Same carries for past also. Past will be same होगा. Simple past, past continuous, past perfect, continuous. Same for future also. Future, simple future, future continuous, future perfect, continuous. These are the structure of tenses. Now we'll take the first tense. It is present. अभी present, past and future का जो basic जो main है simple, right? Simple is common in all three tenses. That is simple और indefinite. So हम present में उसका जो structure होगा subject plus first form of the verb plus object. Like sentence. Sentence का जो form होता है, sentence का जो structure होता है वो कैसे होता है? Subject plus verb plus object. This is the structure of sentence, right? Like in the same way for present ये sentence है. Sentence का जो structure है subject plus V1 plus object जो present tense में होगा कौन सा फॉर्म है simple और indefinite present indefinite में और past indefinite में like past tense में subject plus V2 plus object subject and object is same for all like ये sentence है इसमें subject and object तो same रहेगा but तो जो verb होगा verb का जो second form use होगा किसमें past because already हो चुका है it is already done right. Same for future also. Future का जो formula होगा future indefinite में subject plus will plus V1 plus object. will use करेंगे obviously future के लिए क्या use करेंगे will plus V1 plus object. Now examples से हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे. Subject क्या होता है जैसे राज is a subject right. राज place जो V1 first form of the verb place right and cricket which is object right. like in the same way past में play का V2 second form क्या होता है played Raj is a subject and played ed right second form which is V2 form of play and cricket is the object. now future same जो Raj जो है subject है and will V1 obviously we play क्या है first form of the verb so Raj will play cricket. so यहाँ पे जो present tense में subject plus V1 plus object में क्या आएगा राज plays cricket, past में राज played cricket and future में राज will play cricket. अब second example हम ले सकते हैं कोई भी नाम ले लो जैसे रिया eat mangoes right. रिया eats mango and उसका past क्या होगा रिया ate mango and उसका future form क्या होगा रिया will eat mango. Okay, now we'll go for continuous tense. जैसे simple का हम अपने examples भी देखा है, structure भी देखा है, अब हम continuous का देखेंगे, right? Present continuous tense, past continuous and future continuous. Present continuous tense का एक structure होता है, जैसे हमने simple का देखा था, subject plus is am are plus V1 plus ing. Continuous मतलब क्या है? ing form होगा, right? Obviously जो continue चल रहा हो. सो ing इज फॉर कॉन्टिन्यूस. जब भी आप कंटिन्यूस देखेंगे वहां पे ing फॉर्म होगा ही होगा चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो या फिर फ्यूचर. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट इज एम आर फॉर प्रेजेंट प्लस V1 प्लस ing उसके बाद क्या होगा प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल में हमने सब s प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल लिखा था बट यहाँ पे क्या ऐड होगा इज एम आर होगा प्लस ing फॉर्म होगा. क्लियर. नाउ एग्जांपल देखते हैं. जो सब्जेक्ट है इज एम आर राइट. आई के साथ हम इज यूज नहीं कर सकते, आई के साथ हम एम यूज नहीं कर सकते, आई के साथ आर यूज नहीं कर सकते. तो हम क्या यूज करेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट. सो यहाँ पे एम जो है इज एम आर एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब है एंड यहाँ पे ing V1 प्लस ing. V1 क्या है यहाँ पे प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस ing क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रहा है एंड ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट. सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट दैट मीन्स जो प्लेइंग मीन्स जो कंटिन्यू चल रहा हो. ही इज प्लेइंग क्रिकेट,
ही के साथ में हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे. दे आर, दे इज ए प्लूरल, राइट. आर कब यूज होगा, प्लूरल में आर आएगा. सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट. सो यहाँ पे जो कॉमन जो है प्लेइंग, राइट. इज एम आर जो हमने डिफरेंट मैं 3 सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों में कैसे यूज करना बताने के लिए. बट प्लेइंग यहाँ पे जो V1 फॉर्म आपको पता चला होगा यहाँ पे, प्लस ING जो सब में ऐड हुआ है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है. कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ING होता है. अब past continuous. The structure of past continuous is subject plus was where plus V1 plus ING. यहाँ पे V2 नहीं आएगा. ऑब्वियसली पिछले हम सिंपल में हमने पास्ट में V2 यूज किया था, बट यहाँ पे ING फॉर्म है क्योंकि ING फॉर्म के साथ में ही हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हम ING ऐड कर पाएंगे, ना कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, जो पास्ट में वॉज वेयर यूज होता है क्योंकि ऑब्वियसली दैट वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन, सो दैट्स व्हाई विल यूज वॉज वेयर. Subject plus was where plus V1 first form of the verb plus ING plus object. Example देखेंगे, he was playing cricket. और where कब use होगा, if it is plural then we will use where. They were playing cricket, right. Place नहीं था इसीलिए मैंने उसका सेंटेंस लिखा नहीं. Now the next sentence is future, right. Subject plus will be और shall be plus V1 plus ING plus object. V1 पहले भी था. ING फॉर्म ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इट विल बी ING फॉर्म. देन विल और शॉल जो हम फ्यूचर के साथ यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस विल बी और शॉल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राइट. यहाँ पे शॉल बी हो सकता है, विल बी, दोनों में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टेंस जो देखेंगे वो होगा परफेक्ट टेंस. Present perfect, past perfect and future perfect. Perfect means perfect always we will use V3 form, third form of the verb. V3 हमेशा हम किस में यूज करेंगे, perfect में यूज करेंगे. So present में जो structure होगा perfect का, present perfect का, subject plus has or have plus V3 plus object. Example, he has played cricket. यहाँ पे has यूज किया because he is the singular, right. He is singular, right. So with he we will use has. And if it is they, if you are talking about the plural, then we will use have. They have played cricket. Okay. Now the same way for past, in place of has or have, we will use had because it's already done. And V3 it will not change whether it is present, past or future. Here he had played cricket. Now there in future subject is he will have played cricket. Here in played is common because played because and the first form of play is play. First form of the verb is play, second form of the verb is played, third form of the verb is also played. So that's why we are using played. So okay, now we are done with simple, continuous and perfect. Now the only thing left is perfect continuous tense. So अब हम perfect continuous tense के बारे में देखेंगे. Now present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. सबसे पहले हम देखेंगे present perfect continuous tense का स्ट्रक्चर होगा subject plus has or have been plus V1 plus ING plus object. So जैसे कि मैंने पहले ही बोला था continuous means ING फॉर्म ही होगा. जो काम कंटिन्यू हो रहा हो वहां पे ING यूज हो. कंटिन्यूअस मीन्स इट्स कंटिन्यूअसली इट्स हैपनिंग, राइट. देयर वी विल यूज ING. नाउ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट एज इट इज, सेंटेंस का पार्ट है सब्जेक्ट, हैज और हैव बीन. परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज और हैव प्लस बीन यूज होगा. ओके, ये याद रखना, हैज और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल ING प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट. यहां पे हैज क्यों नहीं लिया, हैव क्यों नहीं लिया, बिकॉज ही जो है ये सिंगुलर है, राइट. और हैव कब यूज होगा, प्लूरल के लिए यूज होगा. विथ सिंगुलर वी विल यूज हैज ओनली. ही हैज बीन यूज होगा परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हम बीन यूज करेंगे. आइदर इट इज परफेक्ट ऑल्सो, present also, past also, future also. There we will use been and plus ING. Okay. Now यहाँ पे जो he has been playing cricket for singular and plural के लिए हम क्या यूज करेंगे, they have been playing cricket. Clear this thing? Now past perfect continuous tense.
मैंने ऑलरेडी बोला है V1 ऑब्वियसली यहाँ पे परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस का जो कैसा पता चलेगा आपको, ing देके पता चल जाएगा। और बीन कैसे यूज होगा परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बीन यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो ना। यहाँ पे इसका पास्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड जो है पास्ट, राइट, हैड बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो सेंटेंस होगा एग्जाम्पल, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हैज और हैव फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट एंड विल हैव फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे, विल हैव। जैसे फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल हैव एज इट इज है, यहाँ पे क्या यूज किया है, बीन प्लस V1। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रेजेंट ईच टेंस कैरीज 4 सबटेंसेस, जैसे मैंने बोला सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सब में सेम होगा। एंड सिंपल का जो मैंने जब सबका मैंने जो स्ट्रक्चर बोला है, तो स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको सेंटेंस फॉर्म करना भी इजी होगा। एंड यू शुड बी नोइंग दैट द which forms of the word, first form, second form and third form, you should be knowing that also. And present में हम क्या use करेंगे, first form of the verb, and past में for the second form of the verb, and for the future we'll use first form of the verb. And for perfect tense, perfect के लिए हमेशा हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, V3 is for perfect। बट यहाँ पे अगर हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करेंगे, कंटिन्यूस मीन्स विच इज कंटिन्यू, राइट, विच इज कंटिन्यूसली इट्स हैपनिंग, राइट, वहां पे हम ing, क्योंकि हम ing फॉर्म यूज करेंगे तो इसलिए वहां पे ऑलवेज विल यूज V1। सो दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।